Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. In this video we'll cover the page number 4 of the lesson button. यहाँ से पढ़। Exactly that, he answered. It could be anyone. All we guarantee is that you don't know them, and of course that you wouldn't have to watch them die. For $50,000? Norma said. That is correct. She made a scoffing sound. That's crazy. Nonetheless, that is the proposition. Proposition, Mr. Stewart said. Would you like me to return the button unit? Norma stiffened. Certainly not. She hung up angrily. The package was lying by the front door. Norma saw it as she left the elevator. Well, of all the nerve, she thought. She glared at the carton as she unlocked the door. I just won't take it in, she thought. She went inside and started dinner. Later she went into the front hall. Opening the door, she picked up the package and carried it into the kitchen, leaving it on the table. She sat in the living room, looking out the window. After a while, she went back into the kitchen to turn the kettles in the cutlets in the boiler. She put the package in a bottom cabinet. She'd throw it out in the morning. Maybe some eccentric millionaire is playing games with people, she said. Arthur looked up from his dinner. I don't understand you. What does that mean? Let it go, he told her. Norma ate in silence. Suddenly she put her fork down. Suppose it's a genuine offer, she said. Arthur stared at her. Suppose it's a genuine offer? All right, suppose it is. He looked incredulous. He looked incredulous. What would you like to do? Get the button back and push it? Murder someone? Norma looked disgusted. Murder? How would you define it? If you don't even know the person, Norma said, or looked astounded. Are you saying what I think you are? Astounded. Are you saying what I think you are? If it's some old Chinese peasant 10,000 miles away, some deceased native in the Congo, how about some baby boy in Pennsylvania? Pennsylvania. It is the name of a place. Pennsylvania. Also counted. Some beautiful little girl on the next block. Now you're loading things. That is the point is, Norma, he continued, what's the difference who you kill? It's still murder. Okay. Now let us check the synonyms of different words in this page. First one is scoffing, that is sneering, corrosive, jeering, sarcastic, cynical और scornful. उर्दू में इसका मतलब होता है कि नफ़रत अंगेज़ या हकारत आमेज़. Next one is proposition, that is suggestion, proposal, recommendation, project, scheme और plan. इसका मतलब होता है कोई तजवीज़ वगैरह. Next one is stiffen, that is solidify, stabilize,
strengthen, firm, tense or harden. इसका मतलब है सख्ती से या सख्त होना. Next one is glare, that is stare, gaze, scowl, frown or look angrily. इसका मतलब होता है कि घूरना या गुस्से से देखना. Next word is eccentric, that is bizarre, crazy, erratic, idiosyncratic, odd और offbeat. इसका मतलब है खपती या अजीबो-गरीब वगैरह. Next is incredulous, that is unbelievable, uncertain, disbelieving, distrustful और skeptical. इसका मतलब है नाकाबिले यकीन. Next one is disgusted, that is displeased, abhorred, repelled, tired और outraged. इसका मतलब है नफ़रत अंगेज़ या इसे मुतनफ़र भी कह सकते हैं. Astound, it means astonish, amaze, confuse, startle, daze, stun और सरप्राइज. इसका मतलब है हैरान व परेशान हो जाना. Different synonyms of counter are oppose, ward off, respond, resist, reverse और opposite. इसका मतलब होता है जवाब देना या मुखालफत करना. अब हम इस पेज की ट्रांसलेशन करते हैं. एग्जैक्टली दैट, यही बिल्कुल यही बात है. ही आंसर्ड, उसने जवाब दिया. इट कुड बी एनी वन, ये कोई भी हो सकता है. ऑल वी गारंटी इज दैट यू डोंट नो दैम. ऑल वी गारंटी इज दैट यू डोंट नो दैम. हम सिर्फ ये इस बात की यकीन दहानी करवाते हैं कि आप उसको नहीं जानती होंगी. एंड ऑफ कोर्स, और यकीनन, दैट यू वुडंट हैव टू वॉच देम डाई, आपको उनको मरते हुए देखना भी नहीं पड़ेगा. और $50,000, $50,000 के लिए नॉमा सेड, नॉमा ने कहा. दैट इज़ करेक्ट, ये बिल्कुल यही बात है या ये बिल्कुल ठीक है. शी मेड अ स्कॉफिंग साउंड, उसने नफरत अंगेज लहजे में कहा. दैट्स क्रेजी, ये तो बड़ी अजीब बात है. नॉनदलेस, ताहम, दैट इज़ द प्रोपोजिशन, यही तजवीज़ है. मिसेस स्टीवर्ट सेड, मिसेस स्टीवर्ट ने कहा. वुड यू लाइक मी टू रिटर्न द बटन यूनिट, क्या आप चाहती हैं कि मैं बटन यूनिट वापस कर दूं. नॉर्मा स्टिफन, नॉर्मा ने सख्ती से कहा. सर्टनली नॉट, यकीनन नहीं. शी हंग अप एंग्रीली, उसने गुस्से से फ़ोन बंद कर दिया. हंग अप जो है ये फ्रेजल वर्ब है, जिसका मतलब है कि फ़ोन रख देना या फ़ोन बंद कर देना. द पैकेज वाज लाइंग बाय द फ्रंट डोर, बंडल सदर दरवाजे के पास पड़ा हुआ था या सदर दरवाजे के करीब पड़ा हुआ था. नॉर्मा सॉ इट एज शी लेफ्ट द एलिवेटर, नॉर्मा जब एलिवेटर या लिफ्ट से बाहर निकली तो उसने इसे देखा. वेल, ऑफ ऑल द नर्व, शी थॉट, उसने सोचा कि कितनी गलत बात है. ऑफ ऑल द नर्व जो है ये ईडियम है और इसका मतलब होता है कि किसी भी चीज़ से डिसअप्रूव कर देना. ठीक है, यानी डिसअप्रूव कर देना या किसी भी चीज़ के साथ से नफ़रत का इजहार करना या किसी भी एंग्री एक्सप्रेशन को कहते हैं. ठीक है, कि अगर ऑफ ऑल द नर्व अगर वो कह रहा है तो इसका मतलब है कि दूसरा कोई भी जो चीज़ जिसके मतलब वो कह रहा है वो एक या तो उससे नाराज़गी का इजहार कर रहा है या फिर उसको बुरा कह रहा है. तो यहाँ पे हम ये लिख सकते हैं कि वो उसने सोचा कि ये कितनी गलत बात है, यानी कि उसने रजामंदी का इजहार नहीं किया, उसको अप्रूव नहीं किया, डिसअप्रूव किया. She glared at the curtain as she unlocked the door. जब उसने दरवाज़ा खोला तो उसने बंडल को घूरा. I just won't take it in, she thought. उसने सोचा कि मैं इसको अंदर नहीं लेके जाती, मैं इसको अंदर नहीं लेके जाऊंगी. She went inside and started dinner.
वो अंदर चली गई और उसने खाना शुरू किया। Later she went into the front hall. बाद में वो सामने के सामने के हाल में चली गई। Opening the door, दरवाज़ा खोलते हुए she picked up the package. उसने बंडल उठाया and carried it into the kitchen. इसको बावर्ची खाने में ले आई, leaving it on the table, और इसको मेज़ पर रख दिया। She sat in the living room. वो कमरे में बैठ गई, looking out the window. खिड़की से बाहर देखने लगी। After a while, थोड़ी देर के बाद she went back into the kitchen to turn the cutlets in the broiler. वो चूल्हे पर रखे टुकड़ों को उल्टाने पुल्टाने के लिए किचन बावर्ची खाने में वापस गई। She put the package in a bottom cabinet. उसने बंडल अलमारी के निचले हिस्से में रख दिया या निचले खाने में रख दिया। She would throw it out in the morning. और उसने सोचा कि वो सुबह के वक्त उसको बाहर फेंक देगी। Maybe some eccentric millionaire is playing games with people, she said. उसने कहा शायद कोई खपती करोड़पति लोगों से खेल खेल रहा है। Arthur looked up from his dinner. आर्थर ने खाने से नज़र हटाई। I don't understand you. मुझे आपकी बात नहीं समझ आई। What does that mean? उसका क्या मतलब है? Let it go, he told her. उसने यानी कि उसके हस्बैंड ने नॉर्मा को कहा कि इस चीज़ को जाने दें या इसको छोड़ दें, या इसके मतलब मत सोचें। लेट इट गो का मतलब है कि आप मज़ीद इसको डिस्कस ना करें। नॉर्मा एट इन साइलेंस। नॉर्मा ने खामोशी से खाना खाया। सडनली शी पुट हर फोक डाउन। अचानक उसने अपना कांटा नीचे रखा। सपोज इट्स अ जेन्युइन ऑफर, शी सेड। उसने कहा कि फ़र्ज़ करें कि ये एक जेन्युइन ऑफर है, यानी कि एक हकीकी पेशकश है, असली पेशकश है। आर्थर स्टेयर्ड एट हर। आर्थर ने उसे घूरते हुए कहा सपोज इट्स अ जेन्युइन ऑफर। ये फ़र्ज़ किया कि ये जेन्युइन कि ये हकीकी पेशकश है। ऑल राइट, सपोज इट इज़। फिर ठीक है, ये फ़र्ज़ करते हैं। ही लुक्ड इनक्रेडुलस। इनक्रेडुलस वो बेयकीन नज़र आ रहा था, या ऐसे लग रहा था कि उसको यकीन नहीं आ रहा। वट वुड यू लाइक टू डू? आप क्या करना चाहती हैं या आप क्या करना चाहेंगी? गेट द बटन बैक एंड पुश इट। ये बटन वापस ला के उसको दबाना चाहती हैं। मर्डर समवन। क्या किसी का कत्ल करना चाहती हैं? नॉर्मा लुक्ड डिस्गस्टेड। नॉर्मा के चेहरे से नफरत झलकने लगी। मर्डर, कत्ल। हाउ वुड यू डिफाइन इट? आप इसकी कैसे वजाहत करेंगे? इफ़ यू डोंट इवन नो द पर्सन। अगर आप उस शख्स को जानते भी नहीं। नॉर्मा सेड। नॉर्मा ने पूछा, यानी कि नॉर्मा पूछ रही थी, और यहाँ पे जाहिर है कि ये वाली जो फॉर्म है, ये कहते हैं हम इसको डायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच का मतलब होता है कि जो कुछ किसी ने कहा हो उसको उसी तरीके से बता दिया जाए। तो ये मैंने एक वीडियो बनाई हुई थी, उसमें बताया था कि डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट में क्या फ़र्क होता है। अब नॉर्मा ने जो कहा था उसको इन्वर्टेड कॉमास में लिखा हुआ है, तो ये क्वेश्चन अगर हम लोग ये भी कहते हैं कि नॉर्मा ने पूछा तो फिर भी वो ठीक है, क्योंकि अगर हम उसको या हम ये कह सकते हैं कि नॉर्मा ने पूछा कि अगर वो शख्स जो है वो उसको हम जानते भी ना हों। आर्थर लुक्ड एस्टाउंडेड। आर्थर हैरत ज़दा नज़र आ रहा था। आर यू सेइंग व्हाट आई थिंक यू आर? क्या आप वही बात कर रही हैं जो मैं सोच रहा हूँ कि आप कर रही हैं? इफ़ इट्स सम ओल्ड चाइनीज पेजेंट 10,000 माइल्स अवे। क्या अगर ये कोई 10,000 मील दूर चाइना का कोई बूढ़ा किसान हुआ, सम डिजीज्ड नेटिव इन द कॉन्गो, या कॉन्गो का एक बीमार रिहायशी हुआ,
या कांगो का कोई बीमार रिहायशी हो, या कांगो का कोई बीमार रहने वाला बीमार रिहायशी हो, कांगो का रहने वाला कोई बीमार शख्स हो। हाउ अबाउट सम बेबी बॉय इन पेंसिल्वेनिया, पेंसिल्वेनिया में रहने वाले किसी छोटे मासूम बच्चे के मुतालिक क्या ख्याल है? आर्थर काउंटर्ड, आर्थर ने जवाबी हमला किया। सम ब्यूटीफुल लिटिल गर्ल ऑन द नेक्स्ट ब्लॉक, या कोई खूबसूरत छोटी लड़की अगले ब्लॉक में, मोहल्ले में कोई खूबसूरत लड़की। नाउ यू आर लोडिंग थिंग्स, अब आप बात बढ़ा रहे हैं। द पॉइंट इज नॉर्मा, ही कंटिन्यूड, उसने बात को जारी रखते हुए कहा कि असल बात यह है नॉर्मा, व्हाट्स द डिफरेंस हु यू किल, ये इससे बात से क्या फ़र्क पड़ता है कि आप इसको मारते हैं? इट्स स्टिल मर्डर, ये फिर भी कत्ल ही है।